the local immune system. The local defense systems are not effective in all cases and circumstances. तो लोकल डिफेंस सिस्टम क्या क्या हो गया? लोकल डिफेंस हो गया स्किन, म्यूकस, हेयर, सीलिया, ये सब, ठीक है. तो ये बहुत बार इफेक्टिव नहीं होता है. Certain microbes or germs and or their poisonous secretions, that is toxins, do enter the deeper tissues and various organ systems by their special mechanisms of entry or through any breaches in their protective barriers. तो जो है बहुत सारा माइक्रोब जर्म्स ये सब जो है क्या करेगा, डीपर टिश्यू ये सब में एंटर कर जाएगा. क्लियर है क्या? यस और नो? At this stage, the blood and the other body fluids start fighting against the germs or any other unacceptable foreign substance. अब जो है ब्लड और जो भी है हम लोग का बॉडी के अंदर जितने भी है ना सेल्स हैं, तो वो सब अलार्म्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि भैया अब तो लड़ना स्टार्ट हो गया है अगेंस्ट द germs or any other unacceptable foreign substance. The body fluids contain special proteins called the antibodies, which react with the invading germs called the antitoxins, which the body fluids contain special proteins, which is antibody, and antitoxin, which react with their poison, that is toxins, to destroy them, and thus they provide protection against disease, that is immunity. तो हमारा बॉडी फ्लूइड क्या क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडी और एंटी टॉक्सिन, दोनों जो है जाकर के क्या करता है, लड़ेगा, ठीक है, जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है और जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म सेक्रीट करते हैं. So therefore, in a nutshell, we can define that immunity is the resistance to the onset of a disease after infection by the harmful germs. harmful germs एंटर कर गए हैं, अब जो है भैया हमको लड़ना है, ठीक है, तो उसको उससे लड़ने के लिए हमारे पास क्या है भैया? इम्यूनिटी. कोई दिक्कत नहीं. To define more elaborately, immunity is the capacity of our body to deal with the foreign substances, example bacteria, viruses, toxins, etc., that enter our body and to render them harmless. ठीक है, तो ये सब एंटर कर रहा है, उसको पकड़ करके भैया शांत करने के लिए, है ना, क्या है? इम्यूनिटी and system, or simply it provides resistance against disease causing. Different kinds of immunity. Immunity can be classified into two main categories, that is innate and acquired immunity, and their different subcategories are as follows. So innate immunity क्या है? This is also called the natural or native immunity. ये हम लोग के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है. This immunity is by virtue of the genetic constitutional makeup. तो हमारे जीन्स में ही वो इम्यूनिटी सिस्टम है. It is there in the body without any external stimulation or a previous infection. तो बाहर से हम लोग इसको, इस इम्यूनिटी को हम लोग लिए नहीं है, ठीक है ना, दैट इज, है ना, बाहर से लिए तो एक्वायर्ड हो जाएगा. इनेट मतलब कि ये अंदर ही इनबिल्ट है, ठीक है. तो पहला, नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी, a degree of natural resistance to all infections in general. For examples, humans do not suffer from the plant's highly infectious diseases or even certain diseases of animals. तो ये जो है नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी है. बहुत सारे जनरल डिजीजेस, ठीक है, प्लांट्स वगैरह में जो है हम लोग को नहीं होता, और ये जो है लाइक बर्थ से ही हम लोग के पास इसको रेजिस्ट करने का क्षमता है. स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी, दिस इज अ नेचुरल रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म ओनली. Some races or some individuals do not suffer from certain infectious diseases. For example, human beings are immune to highly infectious disease of dogs known as distemper, which kills about 50% of all infested dogs. ठीक है, ये जो है नेचुरल रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म, ठीक है ना. तो एक जर्म के लिए
एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे, जब एंटीबॉडी एंटीटॉक्सिन पढ़ेंगे तो और हम लोग को समझ में आएगा कि किस हिसाब से स्पेसिफिकली एक्ट करता है। इनफैक्ट अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोई भी जब जर्म एंटर करता है तो जर्म के बॉडी में प्रोटीन्स वगैरह रहता है, क्लियर है क्या? अब वो प्रोटीन को पकड़ने के लिए हमारे पास जो है वैसा सेल्स होना चाहिए ना, जो कि वैसा प्रोटीन को पकड़ करके लॉक कर ले, क्लियर है क्या? तो कुछ कुछ डिजीजेस के लिए ऑलरेडी हमारे अंदर है, यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ। नेक्स्ट, acquired immunity, resistance to a disease which an individual acquires during his lifetime. It may be the result of either a previous infection, that is actively acquired immunity. Example, a person having once suffered from measles will not normally suffer from it again. या फिर ready-made antibodies supplied from outside, passively acquired immunity. Example, a person bitten by a poisonous snake is given an anti-venom injection which contains antibodies for the poison that were produced in the body of a horse. अब ध्यान से समझिए, ठीक है? एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है? इसको अब डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। This is the resistance developed by an individual due to a previous infection or antigen chemical found on the surface of the disease causing germ cell which enters his body naturally, leading to naturally acquired immunity, or is induced artificially as in vaccinations, leading to artificially acquired active immunity. In either case the body lymphocyte reacts in two ways. क्या होता है एक्चुअली, देखिए ये एक क्या है, एक जर्म है, पैथोजन है, ये आया, क्लियर है क्या? ठीक है, पैथोजन जो है आया, ठीक है? बस हम लोग केवल यही देखें कैसे पैथोजन आया। अब क्या हो रहा है कि जब ये पैथोजन आता है तो फिर पैथोजन के ऊपर कुछ कुछ प्रोटीन्स वगैरह रहता है, ठीक है? लेकिन नॉर्मल ह्यूमन सेल, मतलब कि हम लोग के अंदर जो है ये एक प्रोटीन है जो कि हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC, ठीक है? और ये सब के अंदर जो है अलग अलग है। जैसे कि आपके अंदर आपके जो बॉडी के सेल्स हैं उसका जो MHC बना हुआ है वो अलग है मेरे सेल्स का MHC से, आया समझ में? इसीलिए इनफैक्ट अगर आपका भी सेल जो है लेटर से जब ऑर्गन ग्राफ्टिंग होता है ना, ये किसी ने किडनी दिया दूसरे को या किसी ने लिवर दिया, होता है ना ऑर्गन ग्राफ्टिंग, तो क्या है कि जैसे कि आपका लिवर हमने अपने में लगा लिया, क्लियर है क्या, है ना? अब आपका जो लिवर है उसमें क्या है, वो जो सेल है उसमें आपका वाला प्रोटीन्स है, क्लियर है क्या? तो माय बॉडी विल टेल कि भैया ये फॉरेन सब्सटेंस है एंड इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए जर्म। आ रहा है समझ में? यस और नो? क्लियर है क्या? तो इसी का खेल है, दिस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC का खेल है। समझ में आ रहा है? यस और नो? When a pathogen enters and is escaped by the innate immunity system, ठीक है ना, शुरू में the pathogen then encounters then the dendritic cell that is the brain of the immunity system, ठीक है? ये है dendritic cell। अब ये क्या करता है, ये जो है कुछ कुछ खा लेगा, ठीक है? क्या करेगा ये? कुछ कुछ ये खा लेगा
और उसके बाद फिर क्या करेगा, खा करके, ठीक है, जो आया, जो जर्म आया, उसका जो प्रोटीन था वो तोड़ करके अपने ऊपर लगा लेगा। डेंड्राइट है ना, बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के ऊपर कुछ कुछ है ना, प्रोटीन्स वगैरह लगा हुआ है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया है वो, उसको जो है कुछ को खा लिया वो, और कुछ का जो है कुछ को खा लिया, और खा करके जो उसका जो प्रोटीन जो लगा हुआ है ना बैक्टीरिया का, वो अपने ऊपर लगा लिया वो, और उसके बाद फिर वो जाएगा इम्यूनिटी सिस्टम के बाद, बोलेगा देखो मैंने ये बैक्टीरिया को खाया है, ये देखो। अरे समझ में, ये सॉर्ट, अरे समझ में। अब इम्यून सिस्टम जो है पूरा रिकॉल करेगा, अच्छा ये वाला बैक्टीरिया पहले आया था क्या। अरे समझ में, अगर ये पहले आया था तो हम पहले इसको कैसे मारे थे, हम जैसे पहले मारे थे वैसे ही अभी फिर से हम मारेंगे। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। जैसे कि हम लोग के पास भी आता है ना, कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, भैया एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किए हैं क्या पहले, अच्छा हाँ वैसे सॉल्व किए थे, है ना, चलिए फिर से वैसे ही वही मेथड लगाएंगे। क्लियर है क्या। लेकिन अगर कुछ नया आ जाता है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। समझ में आ रहा है, यस और नो, ठीक है, वही है यहाँ पे, ठीक है। द डेंड्राइटिक क्लास बिलोंग टू अ क्लास नोन एज एंटीजन, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ही है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये जो है उसका प्रोटीन तोड़ करके लगा लिया अपने ऊपर, और ये क्या, ये सबको प्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्लियर है क्या, इम्यूनिटी सिस्टम को जाकर के बोल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि ये याद करना हम लोग को इजी रहे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए, दिस इज द एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दिस इज द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यू टू अ प्रीवियस इन्फेक्शन। तो प्रीवियस जब इन्फेक्शन हुआ था, मतलब कि प्रीवियसली वो जर्म जब अटैक किया था, तो हमारा बॉडी कैसे उस जर्म को मारा था वो हमारा बॉडी याद रखता है। अरे जन्म में, यस और नो, नहीं आना चाहिए। अरे जन्म में वो जो है मेमोरी में क्या करता है, याद करके रखता है, ठीक है। तो उस सेल का नाम क्या होगा, मेमोरी सेल। इम्यूनिटी में ऐसा नहीं कि डब्ल्यू मतलब कि एक ही प्रकार का सेल है, बहुत सारे प्रकार के सेल्स हैं। क्लियर है क्या, बहुत सारे प्रकार के सेल्स हैं। तो कुछ कुछ सेल्स जो हैं मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है क्या, क्या करते हैं, मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है कि नहीं, यस और नो। चलिए बहुत अच्छा। तो दिस इज द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यू टू अ प्रीवियस इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन है, प्रीवियस इन्फेक्शन, ठीक है, ठीक है। और एंटीजन, ठीक है, एंटीजन क्या है, केमिकल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द डिजीज कॉजिंग जर्म सेल। क्लियर है क्या, एंटीजन क्या है, तो डिजीज कॉजिंग जर्म सेल के ऊपर जो प्रोटीन्स वगैरह रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते, क्या क्या रहता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन, ठीक है। which enters his body naturally, leading to naturally acquired active immunity, or is introduced artificially as in vaccinations, leading to artificially acquired immunity। ना अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग के पास इम्यूनिटी में, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम में ऐसे सेल्स हैं, क्या है, ऐसे सेल्स हैं जिनके ऊपर बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, पैथोजन का वो एंटीजन लगा हुआ है, और उसको कैसे काउंटर करना है उसको पता है। अरे समझ में, वो कैसे काउंटर करना है उसको पता है। तो वो जो सेल है, या तो हम लोग, हमारा बॉडी खुद से बनाया है, इन्फेक्शन हो करके हम लोग का बॉडी खुद से बना लिया, या फिर हो सकता है कि हम लोगों ने वो वाला सेल एक्वायर किया कहीं से। क्या किया, एक्वायर किया, ठीक है ना। इनफैक्ट जो मदर का मिल्क होता है उसमें बहुत सारा ऐसे सेल्स
हम लोग एक्वायर करते हैं, जिससे कि हम लोग का जो है इम्यूनिटी है ना, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी हो जाता है। क्लियर है क्या? In either case, the body lymphocyte reacts in two ways. They produce antibodies which freely circulate in the blood and lymph and which bind to the microorganism and kill it. तो WBC क्या करेगा कि जब वो जर्म आएगा तो तुरंत जो है उसको पकड़ करके मार देगा। क्लियर है क्या? और वैसा WBC हमारे पास है, वैसा WBC हमारे पास आ रहा है समझ में? यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? ठीक है, मानिए कि एक सेल है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, और ये सेल जो है कुछ ऐसा सेल है, ठीक है, ऊपर में जो है कुछ ऐसा है, ठीक है ना, और एक बैक्टीरिया था जो कि एक्चुअली कुछ ऐसा था और ये आकर के इसमें फिट होता था। क्लियर है क्या? तो ये सेल जो है इसको पकड़ लेगा, इस बैक्टीरिया को पकड़ने का क्षमता है इस सेल को, यस और नो? तो जब ये बैक्टीरिया आएगा हमारे बॉडी के अंदर तो यही वाला सेल आकर के बैक्टीरिया को अटैक करेगा। क्लियर है क्या? अब ये वाला जो सेल है हमको कहां से मिल सकता है? या तो हमारा बॉडी खुद से डेवलप किया या फिर हमारे बॉडी को हम लोगों ने आर्टिफिशियली दे दिया। आर्टिफिशियली या नेचुरली, है ना? आर्टिफिशियली जो है लाइक यू नो वैक्सीन जो भी हो, ठीक है ना, या तो हमारा बॉडी खुद से बनाया या फिर हम लोगों ने यही वाला सेल बॉडी में इंसर्ट कर दिया। आ रहा है समझ में? यस और नो? ये समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हमारे बॉडी को ये वाला सेल बनाना है, यस और नो? तभी तो इसको मारेगा ना। अरे नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है ना? इस जर्म को मारने के लिए हमारे बॉडी को कौन वाला सेल बनाना है? ये वाला, ये पर्टिकुलर सेल बनाना है, यस और नो? यस और नो? अब ये वाला सेल आप क्या करो, यही वाला सेल बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दो, ठीक है ना, आराम से इसको उसको पकड़ के कर लेगा। या फिर हमारा बॉडी के अंदर पहले से ये सेल नहीं था, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग को ये बैक्टीरिया आ गया तो बॉडी के पास खुद से मैकेनिज्म है ये वाला सेल बनाने का। अरे यस और नो? अब पढ़िए फिर से, ठीक है, ठीक है। इन अदर केस द बॉडी लिम्फोसाइट्स रिएक्ट इन टू वेज। क्या करेगा? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच फ्रीली सर्कुलेट इन द ब्लड एंड लिम्फ एंड विच बाइंड टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल इट। तो एंटीबॉडी क्या होता है? ये है एंटीबॉडी, ये दिख रहा है क्या? है ना? ऐसा जो है ये प्रोड्यूस करके ब्लड स्ट्रीम में फेंक देगा। और जो हमारा बैक्टीरिया है, हमारा जो ऐसे बैक्टीरिया था, ठीक है ना, जा करके इसको पकड़ लेगा और ये जो एंटीबॉडी है इसको लॉक कर देगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? इस बैक्टीरिया को लॉक कर दिया ना, ये बैक्टीरिया अब कहीं जा नहीं सकता। यस और नो? और इस बैक्टीरिया पे एक्चुअली एक थोड़ी होगा, बहुत सारा प्रोटीन ऐसा वाला होगा। क्लियर है क्या? सारे प्रोटीन को पकड़ के ये हमारा एंटीबॉडी लॉक कर दिया। आ रहा समझ में? ये बैक्टीरिया बेचारा हिल ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? They produce antibodies which freely circulate in the blood and lymph. ये एंटीबॉडी क्या है ना? आप लोगों ने देखा है नट और स्पैनर, पर्टिकुलर नट का पर्टिकुलर स्पैनर ही होता है, देखा है कि नहीं? पर्टिकुलर स्क्रू का थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो वो पहले वाला लगाओगे तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? उसका अलग से आएगा, उसको प्लास बोलते हैं हम लोग, अलग नहीं प्लास नहीं, स्पैनर ही है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो ऐसे ही पर्टिकुलर एंटीजन का पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही होगा। आ रहा है समझ में? और वो एंटीबॉडी को क्या करेगा? हमारे ब्लड में छोड़ देगा। तो वो एंटीबॉडी गया, पकड़ लिया बैक्टीरिया को। They produce antibodies which freely circulate in the blood and the lymph and which bind to the microorganism to kill it. आ रहा है समझ में? ऐसा ना तो क्या दिखाते हैं? ये देखिए, दिख रहा है? ये ई कोलाई है ना? ई कोलाई से क्या होता है? क्या होता है ना? डिसेंट्री, ये पेट जो है, पेट का। अब देखिए ध्यान से, हमारे बॉडी के ब्लड में क्या आ गया भैया? एंटीबॉडी आ गया।
इसको पकड़ करके जाम कर दिया, दिख रहा है जैसा और नो। अब बेचारा वो जा ही नहीं पाएगा कहीं, ये दिख रहा है, यहाँ पे फिर से था, है ना, पकड़ के जाम कर दिया, तो क्या हो गया, इमोबिलाइजिंग द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया बेचारा कहीं जा ही नहीं पा रहा है, समझ में आ रहा है ये सब ना, आ रहा है समझ में? ठीक है, they produce killer cells carrying specific receptors for the foreign antigens found in invading germs। ठीक है, अब क्या ये प्रोड्यूस करेगा, किलर सेल। पहले तो पकड़ के ये कर दिया, ठीक है, यहां पे देखिए, इमोबिलाइजिंग द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के एकदम ये कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हो गया, न्यूट्रलाइजिंग द टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो रिलीज कर रहा है उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। और अट्रैक्ट द माइक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस मतलब किलर सेल्स, ये आएगा बैक्टीरिया को पकड़ के मार देगा। आ रहा है समझ में, यस और नो? They actively acquired immunities are usually long lasting, carried out through memory lymphocytes। हम बोले थे ना मेमोरी होता है, ठीक है। अब जो है, जब बैक्टीरिया आया, हमारा इम्यून सिस्टम बोला कि भैया पहले कभी आया था क्या, मेमोरी में है हमारा, कैसे हम लोग कौन वाला जो है काम किया था, वही वाला स्पैनर लाओ, ला करके इमोबिलाइज कर दो और उसके बाद फिर इमोबिलाइज करके मार दो। अरे समझ में, ऐसा और ना। दूसरा है पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस इज द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल नॉट बाय हिज ओन बॉडी बट फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज। रेडीमेड एंटीबॉडी है, अरे समझ में, बैक्टीरिया के ऊपर क्या है, एंटीजेन है, जो प्रोटीन है, उसी को पकड़ना है हमको। उस एंटीजेन, उस प्रोटीन को पकड़ने के लिए जो है एंटीबॉडी चाहिए हमको, और वो एंटीबॉडी जो है रेडीमेड हमको मिल जाए तो बेस्ट चीज, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। दी पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला हो गया नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इन इट द रेडीमेड और द प्री प्रिपेयर्ड mother's antibodies may reach the fetus that is developing embryo through the placenta। अरे समझ में, मदर का एंटीबॉडी वो चाइल्ड में चला जाता है, इनफैक्ट मदर्स मिल्क में भी रहता है एंटीबॉडीज। Artificially acquired passive immunity, in this the antibodies are produced in the blood of a horse or some other animal by injecting germs into its body। ठीक है, तो अब क्या है, पहला समझ में आ गया, मदर में था तो मदर से ऑलरेडी आ गया। अब हम क्या करेंगे कि वो जो जर्म है, जो बैक्टीरिया है, उसको हम क्या करिए, हॉर्स में डाल दिए। अब हॉर्स क्या करेगा, हॉर्स का बॉडी जो है पहले फाइट करेगा और फिर थोड़े समय के बाद वैसा सेल्स प्रोड्यूस करेगा जो कि उसको मार सके। क्लियर है क्या, वो सेल्स को हम कलेक्ट कर लिए और वो सेल जब भी किसी को वो डिजीज हो रहा है, सीधा उसी सेल को हम इंसर्ट कर दिए। क्लियर है क्या? So this is artificially acquired passive immunity. In this, the antibodies are produced in the blood of a horse or some other animal by injecting germs into its body. Anti-serum injections are prepared from the serum containing antibodies of such animals' blood and are injected into the body of the patient. और बहुत prominent example है इसका, जब snake bite होता है, ठीक है, तो snake bite होता है तो क्या poison है भैया वो, और antigens वगैरह है उस पर। तो अब क्या करते हैं कि, है ना, और दैट ऑफ द डिप्थीरिया पेशेंट बाय एंटी डिप्थीरिया, ठीक है। तो जो इंजेक्शन लगता है उस इंजेक्शन में क्या है, एंटीबॉडीज है। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंटीजन का मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया के ऊपर है। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, बोलिए, एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? हाँ बोलिए। बाइंडिंग एंटीबॉडी क्या होता है?
जो कि जर्म्स को मारने के लिए हमारा बॉडी के अंदर सेल्स होता है, ठीक है ना। क्लियर है क्या? सेल्स के ऊपर जो वो ये रहता है, समझ में आ रहा है? खाली सोइए क्लास में, केवल सोइए, कहीं दिमाग पूरा इधर उधर। तो ये लोग, यही लोग हैं जो कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो कुछ एकदम नहीं, खाली सोइए बैठ, ऐसे भी नहीं कि उठ जाए। उधर भी वही चल रहा है, आँख देख रहे हैं पूरा एकदम लाल हो गया। सोच के आया था कि 3 घंटा क्लास है, थोड़ा कम सो के जाते हैं, है कि हैं? खाली सोइए क्लास में। ठीक है, Hefkines Institute in Bombay and another institute in Kasauly are preparing several such anti-sera. Antivenin for treating snake bite is also based on the same principle. For the sake of simplicity, let us just take the active and passive maintenance and summarize the differences between them as given in the table 17.1 at the bottom. Hali